हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदाम तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदाम बाप। हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं कि खुदाम तूने हमें इस काबिल समझा कि खुदाम तूने अपनी हजूरी में आने का मौका दिया। खुदाम खुदा ये रहम के तर्स खुदाम तूने हमारे ऊपर खाया। खुदाम हम तेरे इस एहसान के लिए खुदाम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं खुदाम बाप के खुदाम तू हमें नया बनाने के लिए, वो हमारे अंदर जो पुरानी इंसानियत है, वो गंदगी है, वो जो नापाकी है, वो जो गलाजत है, वो जो खुदा हमारे और तेरे दरमियान दुश्मनी की दीवारें खड़ी करती हैं किसी भी तरीके से, खुदा अगर आ गई हैं तो खुदा यीशु के नाम से आज खुदा वो सारे आ, तारीकी के काम, वो मुर्दा काम जो हमारी जिंदगी में है, कहीं भी वो तेरे कहर को भड़काते हैं। खुदा आज तो हमारी कांट छांट कर खुदा आज तो हमें अपने हाथों से शेप दे। खुदा जो गैर जरूरी, जो तुझे पसंद नहीं है, वो बातें, वो काम हमारी जिंदगी से निकल जाएं, खत्म हो जाएं। और खुदा वो सारे जो तेरे काम है, वो पाक पवित्र, वो फर्मा बरदारी, वो ताबियादारी की रूह हमारे अंदर आ जाए। खुदा आज जब तू बोले तो जो भी तेरे दिल की बातें हैं, जो तू हमसे करना चाहता है खुदा, और हमें नया बनाने के लिए, हमें पाक साफ करने के लिए खुदा जब तू बोले तो वो हमारी जिंदगियों में घर करे। वो कलाम किसी भी तरीके से इब्लीस चुराने ना पाए, कहीं खुदावंद उसको तोड़े मरोड़े ना। खुदा वो खालस जो तेरा सच्चा कलाम है, जो तेरी सच्चाई की बातें हैं, तालीम है खुदा, वो हम तक पहुंचे। और खुदावंद हम उस पे अमल करके खुदा यीशु मसीह की मानद बनते जाएं। वो हमारे जिंदगियों से वो दाग, वो धब्बे, वो छुरियां खत्म होती जाएं, ताकि खुदा यीशु मसीह जब आए तो हम तैयार हों। हमारे बदनों पे, रूह बदन जान पे कोई दाग, कोई धब्बा, कोई छुरी ना हो। हम बेइल्जाम हो, बेऐब हो। खुदाउंद यस्सु की मानित बन जाए। यस्सु के नाम से हम सब मिलकर एक रूह में बनकर एक दिल होकर ये दुआ बड़े ही ईमान और भरोसे और तवक्कुल से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड से हम आज पैदाइश की किताब और उसका 29 बाब जो है वो पढ़ेंगे। और हमें सुरैया और अंजना जो है वो हमारी रहनुमाई करेंगे बाइबल रीडिंग में। जी अंजना। Praise the Lord. 29 चैप्टर उत्पत्ति ਦੀ ਪੁਸਤਕ। Praise the Lord. ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਲੇਹਾ ਅਤੇ ਰਖੇਲ ਨਾਲ ਵਿਆਹ। ਯਾਕੂਬ ਉੱਥੋਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਪੂਰਬੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਰੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੂਹ ਸੀ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਭੇਡਾਂ ਦੇ 3 ਇੱਜੜ ਖੂਹ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਖੂਹ ਤੋਂ ਇੱਜੜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਖੂਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਸੀ। ਜਦ ਸਾਰੇ ਇੱਜੜ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਖੂਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਰਿੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਜੜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਖੂਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖ। ਤਦ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਹਾਰਾਨ ਹਾਰਨ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਹਨਾ ਬਾਜੀ? हारान। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਹੋਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਲਾਬਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਵੇਖ ਉਹਦੀ ਧੀ ਰਾਖੇਲ ਭੇਡਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਵੇਖੋ ਅਜੇ ਦਿਨ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਕੇ ਚਾਰਨ ਲਈ ਲੈ ਜਾਓ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੀਕ ਸਾਰੇ ਇੱਜੜ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਖੂਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਾ ਰੇੜਨ, ਤਦ ਤੀਕ ਅਸੀਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ
ਰਾਖੇਲ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨਾਲ ਆਈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪਾਲਣ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਲਾਬਾਨ ਦੀ ਧੀ ਰਾਖੇਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਲਾਬਾਨ ਦੇ ਇੱਜੜ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਖੂਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਰੇੜਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਲਾਬਾਨ ਦੇ ਇੱਜੜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ। ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਰਾਖੇਲ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਇਆ। ਤਾਂ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਰਾਖੇਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਰਿਬਕਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਨੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਲਾਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਣਜੇ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਨੱਠਾ ਅਤੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਲਾਬਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਲਾਬਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੀ ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਉਸੇ ਦੇ ਘਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਲਾਬਾਨ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਕ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਟਹਿਲ ਮੁਫਤ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਕੀ ਤਲਬ ਲਵੇਂਗਾ। ਲਾਬਾਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਸਨ, ਵੱਡੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੇਹਾ ਅਤੇ ਨਿੱਕੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰਖੇਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਲੇਹਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਰਖੇਲ ਰੂਪਵੰਤ ਅਤੇ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੀ ਸੀ। ਯਾਕੂਬ ਰਖੇਲ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨਿੱਕੀ ਧੀ ਰਖੇਲ ਲਈ 7 ਵਰ੍ਹੇ ਤੇਰੀ ਟਹਿਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਗੋਂ ਲਾਬਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿ। ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਰਖੇਲ ਨੂੰ ਲਈ 7 ਵਰ੍ਹੇ ਟਹਿਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਨ। ਤਾਂ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਲਾਬਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਵਹੁਟੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਲਾਬਾਨ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਸਭ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਵੇਲੇ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਲੇਹਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਲਾਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਲਫਾ ਆਪਣੀ ਗੋਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਧੀ ਲੇਹਾ ਲਈ ਗੋਲੀ ਹੋਵੇ। ਜਦ ਸਵੇਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਲੇਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਲਾਬਾਨ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਖੇਲ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਟਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਿਉਂ ਕਮਾਇਆ? ਲਾਬਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਿੱਕੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਠੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੇਈਏ। ਇਹਦਾ ਸਾਤਾ ਪੂਰਾ ਕਰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਟਹਿਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੋਰ 7 ਵਰ੍ਹਾ ਤੀਕ ਕਰੇਗਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਯਾਕੂਬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਤਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਤਦ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਰਖੇਲ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਲਾਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਰਖੇਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗੋਲੀ ਬਿਲਹਾ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੋਲੀ ਹੋਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਰਖੇਲ ਕੋਲ ਵੀ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਰਖੇਲ ਨੂੰ ਲੇਹਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਹੋਰ 7 ਵਰ੍ਹੇ ਉਹਦੀ ਟਹਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਲੇਹਾ ਘਿਨਾਉਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸਦੀ ਕੁੱਖ ਖੋਲੀ, ਪਰ ਰਖੇਲ ਬਾਂਝ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਲੇਹਾ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਣੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੌਬੇਨ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕਸ਼ਟ ਵੇਖਿਆ, ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਰਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਫੇਰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਣੀ। ਤਾਂ ਆਖਿਆ, ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਘਿਨਾਉਣੀ ਜਾਣੀ ਗਈ ਸਾਂ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਿਮਯੋਨ ਰੱਖਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਣੀ। ਤਾਂ ਆਖਿਆ, ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਮਰਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਰਹੂਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਲਈ 3 ਪੁੱਤਰ ਜਣੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੇ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਲੇਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਏ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਣੀ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਯਹੂਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਤਦ ਉਹ ਜਣਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਤਾਰੀਫ। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड। खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ हो उनके जिंदा और पाक कलाम के लिए, और जो हमें हर रोज कुछ ना कुछ सिखाता है। और खुदा उनका कलाम कभी भी पुराना नहीं होता है ना, जब भी उसको पढ़ें कोई ना कोई नई बात हमें खुदा उनके कलाम में से मिलती है। और सीखने के लिए, उस पर अमल करने के लिए, चाहे ये हजारों साल पुरानी है लेकिन वही कह लें आज भी नई है, ताज़ा है। हालेलुया। इसलिए खुदावंद का जो कलाम है उसके लिए हम खुदावंद का शुक्र करेंगे। आज के इस चैप्टर में हम देखेंगे कि
क्या हमें खुदावंद इसमें सिखाता है। इसमें कुछ बातें हैं जो हम करते हैं। अम, याकूब जो है, हमने पीछे देखा था कि अपने बाप के घर से यानी इसहाक और रिबका के घर से अपने मामू जो था लाबन, उसके घर जाने के लिए जा रहा था। तो रास्ते में खुदावंद ने उससे वादा किया या बातचीत की या अहद जो थे, अहद जो था किया, वादे किए खुदावंद ने उसके साथ, है ना, कि मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। और पहली दफा खुदावंद ने याकूब के साथ शख्सी तौर पे बात की, और वो वादे जो इब्राहिम के साथ किए थे, है ना, वो याकूब के साथ किए, बल्कि और ज्यादा, यानी खुदावंद ने कहा कि मैं तुझे वापस, क्योंकि वो उस मुल्क से जो वादे की सरजमीन थी उससे बाहर जा रहा था, है ना, तो खुदावंद उसको खुदावंद ने कहा कि मैं तुझे वापस लेके आऊंगा, मैं तब तक छोड़ूंगा नहीं तुझे जब तक तुझे इस सरजमीन में जो तेरी मिरास है वापस ना लेके आऊं, है ना। और खुदावंद ने कहा कि मैं तेरी हिफाजत करूंगा, है ना, और छोड़ूंगा नहीं। और ये मुल्क जो है मैं तुझे दूंगा। और याकूब ने वहां पे जिस जगह पे खुदावंद ने उससे कलाम किया था, उस जगह पे वो सतून जो था वो खड़ा किया, है ना, और उस पे तेल डाला। ये हमने सीखा था कि सतून का क्या मतलब है, सीढ़ी का क्या मतलब है ना, कि ये खुदा यीशु मसीह को पेश करती है। और हमने सीखा था कि मन्नतें नहीं मांगनी चाहिए, या कस्में जो हैं वो नहीं खानी चाहिए। और खुदा यीशु मसीह ने हमें ये मना किया है कि हम मसीही जो हैं, इस्राएली लोग ये कसम जो है वो खाया करते थे या मनते माना करते थे, लेकिन हमें खुदा ने कहा कि हम ये जो कस्में हैं वो ना खाएं, है ना। खुदा यीशु मसीह ने ये हमें साफ कहा है। इसलिए मसीही जो हैं, आ, ये जो कस्में हैं हम नहीं खाते या मनते जो है, जिस तरह वो नजर कर दिया करते थे। जैसे हमने कल थोड़ा सीखा कि बादशाह ने जब मन्नत मानी कि जो भी मुझे पहले नजर आएगा, अगर तो खुदा मुझे जंग जो मैं जीत जाऊं, तो उसको उसने अपनी बेटी को कुर्बान कर दिया, है ना। और हन्ना जो थी, उसने मन्नत मांगी कि खुदावंद अगर तू मुझे औलाद दे तो मैं उसको तेरी नजर कर दूंगी। और सामुएल को उसने हैकल में नजर कर दिया था, है ना। तो इस तरह इसराइली जो है वो किया करते थे खुदा के साथ। जिस तरह याकूब ने कहा कि अगर तू मुझे खाने को रोटी, पहनने को कपड़ा दे, तो मैं तुझे 10वां हिस्सा जो है वो तुझे दिया करूंगा। तो ये हमने कल थोड़ा सा सीखा था, है ना। तो इस चैप्टर में एक और बात हमें जो है तो पुरानी बात ही, लेकिन ये कि देखिए जहां से इब्राहिम को खुदावन निकाल के लेके आया था, इराक से, और रास्ते में जो एक जगह थी, वहां पे अ, जो इब्राहिम था जब अपने बाप के घर से खुदावंद उसको लेके चल रहा था, तो रास्ते में भी उसने रुका था। वहां पे भी वो रहा था, हरान का जो इलाका, अब ये तुर्की में आता है। और इब्राहिम जो था वो इराक से चला था, वो अ, जब खुदावंद ने उसको चुना था, है ना। तो अब वापस ये जो हरान का इलाका है वहां पे इब्राहिम के ही भाई, अ, आगे जो है उसके सारे बेटों का नाम लिखा है मेरा पिछले चैप्टर में शायद, है ना, हमने पढ़ा था कि उसमें से रिबका थी, और उसके रिश्तेदारों में यानी इब्राहिम के ही रिश्तेदारों में रिबका थी। और जो लूत था हमने देखा कि वो भी इब्राहिम का रिश्तेदार था। सारा भी इब्राहिम की रिश्तेदार थी, है ना। हमने
पीछे जो चैप्टर थे उनमें पढ़ा था कि सीखा था कि इब्राहिम ने जब उसको कहा कि ये मेरी बहन है ना, और इसलिए वो भी इब्राहिम की रिश्तेदार थी। और अब याकूब भी जो है वो कहाँ पे जा रहा है, अपने जो बाप के यानी इब्राहिम के रिश्तेदार अपनी माँ के भाई के पास जा रहा है, और वहां से इसहाक ने और रिबका ने, जैसे कह लें, दोनों ने अपनी रजामंदी से उसको उस जगह पे भेजा, कहाँ पे, अपने रिश्तेदारों के पास। तो इससे जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे ये एक बात जो, या एक जो वादा है खुदावंद ने अ, हमारे साथ किया, कि खुदावंद ने कहा कि तू बच तो मैं तेरे घराने को भी निजात जो है वो दूंगा। तो देखिए को मुकमा के जिस तरह कहते हैं पंजाबी, सारे उसके रिश्तेदार ही जो इब्राहिम को खुदावंद ने चुना, और अब उसके ही रिश्तेदारों में से आ, अपने बेटे के लिए उसने वो बहू जो है अकेले लेके आई, और अब उसका जो पोता है उसके लिए भी जब शादी का टाइम आया तो वो कहाँ जा रहा है, अपने रिश्तेदारों में या अपने मामू के घर। तो इसलिए ये एक इसमें से हमें सीखने को मिल रहा है कि खुदावन जो है जब वादा करता है कि, और या खुदावन ने जब कहा है कि तू बच तो तेरा घराना भी बचेगा, तो ये यहाँ पे एक बात जो है वो पूरी हो रही है इस इब्राहिम की अभी तक हम जो देख रहे हैं, है ना। और अगर रूहानी तौर पे देखें तो वो एक हम जैसे कह लें कि जब मसीह में आ जाते हैं तो हमारी एक अलग से फैमिली हो जाती है, लेकिन अभी तक जो है वो हम देख रहे हैं कि यानी अ, उसी की फैमिली में से जो चुने जा रहे हैं, और वो सारे नहीं चुने, लेकिन जैसे कह लें जिसको खुदावन ने चुना है। इसी तरह हम आगे जब मसीह में आते हैं तो वहां पे भी देखते हैं कि जरूरी नहीं कि पूरी फैमिली में से सारे ही चुने जाएं। जिस तरह यहाँ पे भी रिबका को चुना, है ना, और लाबन को नहीं, और यानी उसका जो भाई है उसने दुआ उसको दी, जो कह लें कि तू अ, तुझसे यानी कौमों के जत्थे पैदा हूं, है ना, और खुदावन तुझे बरूमंद करे। लेकिन जो चुना था वो रिबका को चुना था, है ना। अब जो है फिर हम देख रहे हैं कि उसी की फैमिली में से यानी लिया और राखल जो है, यानी लाबन की बेटी, तो वो किसी ना किसी तरीके से कह लेंगे, मैं कहूंगी कि लाबन भी क्योंकि उनका बाप है, तो आ, वो भी चुना गया, जिस तरह पहले, है ना। जिस तरह लूत जो है आ, इब्राहिम के साथ आया तो उसकी बीवी भी थी, उसकी बेटियां भी थी, है ना। लेकिन उसमें से अगर जैसे लूत की बीवी ने, जैसे मैं कहूंगी कि बैकस्लाइडर हो गई, यानी खुद ही छोड़ दिया खुदावंद ने उनको नहीं छोड़ा था। खुदावंद ने तो कह लें फरिश्ते भेजे और उनको निकालने की कोशिश की, लेकिन वो खुद ही पीछे उसने मुड़ के देख लिया, जो कि खुदावंद ने मना किया था। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि फैमिली जो है या खानदान जो है, उसमें से जो खुदावंद को आ, जिस तरह रिबका को जब चुनने के लिए गया था नौकर, तो इब्राहिम ने उससे कहा था कि अगर वो आना चाहे, तो इसलिए खुदावंद जबरदस्ती नहीं करता, फैमिली से भी चुनता है, लेकिन अगर वो आना चाहे, तो रिबका के लिए इब्राहिम ने ये कहा था कि अगर वो आना चाहे तो तू उसको लेके आना, अगर वो ना आना चाहे तो तू मेरी उससे आजाद है, इब्राहिम ने नौकर से कहा था। तो इसी तरह हम देखते हैं कि अब जब याकूब जो है इधर आया है लाबन के पास अपने मामू के घर, तो यहाँ पे भी यानी ये उसकी बाप की या कह लें लिया या राखल की मर्जी से याकूब जो है जैसे कह लें शादी, या वो चुनी गई हैं या चुनी जाएंगी, अभी हम आगे देखेंगे, है ना। तो खुदावंद जबरदस्ती नहीं करता, जैसे कह लें वो कहाँ पे लिखा है जहाँ पे कि खुदावंद ने तो
बुलाया है सबको, खुदावंद तो बुलाता है, लेकिन हमारी भी उसमें मर्जी शामिल होती है कि हम खुदा को कबूल करते हैं या नहीं करते, है ना। तो इसलिए खुदावंद हमारी फैमिली को चुनता है, खुदावंद इंतजाम करता है, यानी जैसे अब याकूब को भेजा है, या तब नौकर को भेजा था, है ना। तो इस तरह खुदावंद तो भेजता है अपने कह लें नबी पैगंबरों को, मुकद्दस लोगों को, या खुदावंद की जो मनादी है या वो तो होती है, लेकिन जो कोई कबूल करता है वो बचाया जाता है ना। तो इसलिए ये वाली बात जो थी ये मुझे इसमें अच्छी लगी कि खुदावंद ने कहा कि मेरी यानी इसहाक ने और रिबका ने कहा कि हमारी जो फैमिली है, हमारा जो खानदान है, मेरा जो रिश्तेदार है, मेरा जो भाई है, वहां पे तू जा और वहां पे उसकी बेटियों में से एक को ब्याह लाना, है ना। और एक वहाँ यहाँ इस चैप्टर में एक और बड़ी मैं कहूँगी कि एक खूबसूरत बात हुई कि हम देख रहे हैं कि अ, याकूब जो है जब उस इलाके में पहुंचा, है ना, हरान के उस इलाके में, तो वो कहाँ पे गया, मैदान में उसने क्या देखा, एक कुआं देखा, कुआं देखा, वहां पे वो जाके बैठ गया। और ये एक दफा नहीं हुआ, ये हम कह लें बार बार देख रहे हैं। जब नौकर गया रिबका को पसंद करने, तो वो कहाँ पे गया था, अब सबको याद होगा, है ना, कि उसने कुएं पे उस रिबका को जो था देखा, और उसने कहा कि मेरे तू मुझे पानी पिला, और उसने कहा कि मैं तुझे भी पानी पिलाऊंगी और तेरे ऊंटों को भी पानी पिलाऊंगी, है ना। तो वो कहाँ पे खड़े थे, ये सारी बातचीत कहाँ पे हो रही थी, कुएं के इर्द गिर्द, चश्मे के सोते के इर्द गिर्द हो रही थी, या वहां पे कह लें हो रही थी। जब रिबका को नौकर ने जो था कह लें देखा, और उसका वो जायजा ले रहा था, उससे बातचीत कर रहा था, या उसको कह लें परख रहा था, और अपने जो मालिक था यानी इसहाक के लिए उसको पसंद कर रहा था। और वहीं पे लिखा है कि उसने वो नथ और वो जो क्या था कंगन जो थे उसको पहना दिए थे, कहाँ पे, कुएं के पास ही, कुएं के पास ही उसने बातचीत की, रिबका को पसंद किया, और वहीं पे उसको नथ और कंगन भी पहना दिए थे। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि जो आ, लिया है उसको वो सॉरी राखल जो है वो कहाँ पे मिली, कुएं के पास। और एक और हमारे पास एक है कि जो मूसा था, आ, वो भी जब ये हम एक पढ़ लेते हैं हवाला खरूज निकालना सुरैया, उसका 2 बाब और उसकी 15 से 20 आयत अगर हम पढ़ें, जिसमें हमें पता चलता है कि मूसा जब जुल्फा जो थी उसकी बीवी, जब वो उस इलाके में पहुंचा, तो तब भी क्या वो कहाँ पे पहुंचा था, कुएं के पास। खरूज की किताब 2 बाब, जी, खरूज 2 बाब। हेलो। हाँ जी हाँ जी, आ रही है आवाज। बाबा। 2 बाब उसकी 15 आयत ओके। और 22। हाँ जी। जब फिरौन ने ये सुना तो चाहा कि मूसा को कत्ल करे, और मूसा फिरौन के हुजूर से भागकर मुल्क के मध्यान में जा बसा। वहां वो एक के नजदीक बैठा था, और कहाँ बैठा था, मिद्यान के काहिन की 7 बेटियां थीं। वो हाँ आईं जी, और पानी भर भर कर गट ताकि अपने बाप की भेड़ बकरियों को पिलाए, और गिडरिये आकर उनको बहकाने लगे। लेकिन मूसा खड़ा हो गया लेकिन मूसा खड़ा हो गया और उसने उनकी मदद की और उनकी भेड़ बकरियों को पानी पिलाया।
اور جب وہ اپنے باپ رویل کے پاس لوٹی تو اس نے پوچھا آج تم اس قدر جلد کیسے آ گئی؟ انہوں نے کہا ایک مصری نے ہم کو گڈریوں کے ہاتھ سے بچایا اور ہمارے بدلے پانی بھر بھر کر بھیڑ بکریوں کو پلایا۔ اس نے اپنی بیٹیوں سے کہا وہ آدمی کہاں ہے؟ تم اسے کیوں چھوڑ آئی؟ اسے بلاؤ لاؤ کہ روٹی کھائے۔ اور موسیٰ اس شخص کے ساتھ رہنے کو راضی ہو گیا۔ تب اس نے اپنی بیٹی سفورہ موسیٰ کو بیاہ دی اور اس کے ایک بیٹا ہوا اور موسیٰ نے اس کا نام جیرسوم رکھا، یہ کہہ کر رکھا کہ میں اجنبی ملک میں مسافر ہوں۔ آگے ہاں جی، پڑھیں۔ بس نہیں ٹھیک ہے، ہاں جی، ہے نا۔ تو اس کو بھی وہ کہاں پہ ملی؟ جو سفورہ تھی، اس کی بیوی جو تھی، وہ کنویں پہ ملی تھی، ہے نا۔ اور یہاں پہ بھی سچویشن جو ہے یا حالات ویسے ہی ہیں کہ اس نے ایک حساب سے گڈریوں سے یا ان کو بچایا، اور وہ پانی جو تھی اپنی بھیڑوں کو جلدی جیسے کہنے پلا سکی۔ اور یعقوب کا بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے بھی کیا کیا، ان چرواہوں سے یعنی جو وہ پتھر تھا وہ ہٹایا اور کنویں سے، تاکہ وہ جلدی اپنے جو راخل ہے اپنے بھیڑ بکریوں کو پانی جو ہے وہ پلا سکے، ہے نا۔ تو وہی سچویشن موسیٰ کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس نے بھی بچایا ان کہہ لو گڈریے سے، ان چرواہوں سے، اور تاکہ اس کی بھیڑ بکریاں پانی پی سکیں، ہے نا۔ اور یعقوب نے بھی ویسا ہی کیا، وہاں پہ اس کو ملا، ہے نا، کنویں کے ارد گرد۔ اور وہ نوکر جو تھا وہ بھی کہاں تھا؟ کنویں کے ارد گرد۔ اور ہمیں سب کو پتا ہے کہ کنواں بھی جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کو پیش کرتے ہیں، ہے نا، کیونکہ نئے عہد نامے میں خدا یسوع مسیح جو ہے وہ جب سامری عورت کو ملا تو اس کو بھی یعنی وہ چنی گئی کہہ لیں، تو کہاں پر خدا یسوع مسیح ملے؟ خدا یسوع مسیح خود بھی ملے اور کنواں بھی خدا یسوع مسیح کو پیش کرتا ہے۔ یوحنا 4 باب اور اس کی 6 سے 14 آیت پڑھتے ہیں، جہاں پہ خدا یسوع مسیح نے اس جو سامری عورت تھی اس کے ساتھ بات چیت کی اور اس کو اس سے کہا، جی پڑھیں گے، میں سریا کا نیٹ خراب ہو رہا ہے، انجنا آپ ہی پڑھ لینا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ یوحنا 4 باب 6 سے 14 آیت۔ جی صحیح۔ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਖੂਹ ਸੀ, ਜੋ ਯੀਸ਼ੂ ਪੈਡੇ ਤੋਂ ਥੱਕ ਕੇ ਉਸ ਖੂਹ ਉੱਤੇ ਐਵੇਂ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੁਪਹਿਰ ਕੁ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ। ਤਦ ਸਾਮਾਰੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਤੀਵੀਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਆਈ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਲ ਪਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਮੁੱਲ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਮਰੀ ਤੀਵੀਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਲਾ ਤੂੰ ਯਹੂਦੀ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸਾਮਰੀ ਤੀਵੀਂ ਹੈ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੂਦੀ ਸਾਮਰੀਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ? ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਲ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦਿੰਦਾ। ਤੀਵੀਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਖੂਹ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਭਲਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਯਾਕੂਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖੂਹ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪ ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੀਤਾ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜੋ ਇਹ ਜਲ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਫਿਰ ਧਿਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਲ ਪੀਵੇਗਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਕਦੇ ਧਿਆਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਜਲ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਮਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਤੀਕਰ ਉਛਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। Praise the ہاں Lord. جی، آمین، پریز دی لارڈ۔ خدا یسوع مسیح ہی وہ کنواں ہے، خدا یسوع مسیح ہی وہ پانی ہے نا۔ اور اس نے خدا یسوع مسیح نے اس عورت کو کہا، ہے نا، خدا یسوع مسیح کیا تھا وہاں پہ اس کی بات چیت کا کیا مطلب تھا کہ وہ اس کو چن رہا تھا، وہ اس کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا کہ جو اس پانی میں سے
यानी खुदा यीशु मसीह ने अपने बारे में कहा, है ना, कि जो इस पानी में से पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, उसके अंदर से पानी की नदियां जारी जो हो जाएंगी। यानी वो खुद भी बची और उसके वसीला से आगे जो है वो गई भाग के, और पूरे गांव को भी उसने जैसे कह लें मनादी की, उसने कहा कि वो मसीहा, वो जिसका हम इंतजार कर रहे हैं वो आ गया। तो उसके वसीले से क्या हुआ, वो पूरा गांव भी जो था बच गया। जैसे कल हमने सीखा कि वो जो सतून है वो खुदा यीशु मसीह है ना। तो जो कोई जैसे कह लें मनादी करता है, जो और रूहें जैसे कह लें खुदा यीशु मसीह में लेके आता है, तो वो एक पिलर है, वो एक सतून है, खुदा ने कहा। और यानी जो दुश्मन पे गालिब आता है, यानी खुदावंद के कलाम को या खुदावंद की ये जो पानी का नदी जारी हुआ है उसको हम रोके ना रखे, है ना। खुद ही अपनी बचा ली और दूसरों का ना बचाएं, ये नदियां जारी होंगी। जो पानी है यानी खुदावंद यीशु मसीह रूहें बचाने का कह लें, जिस तरह हमारी रूह बची है, इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह हमारे वसीला से और भी जो काम है रूहों को बचाने का, मनादी का, वो करता है। तो इसलिए यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह है। याकूब देखें, जिसने कुआं बनाया था, वो कह रही कि तू हमारे बाप से याकूब से भी बड़ा है ना। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उस बात को भी बयान किया कि वाकई ही खुदावंद यीशु मसीह जो है वो बड़ा है, या कि वो पानी तो था, वो जिस्मानी पानी की बात हो रही है, लेकिन ये रूहानी पानी की बात हो रही है। जिस तरह हम सबको पता है कि वो जिस्मानी इसराइल है और हम क्या हैं, रूहानी इसराइल है ना। याकूब भी जैसे कह लें कि खुदा यीशु मसीह को, इसीलिए हम ये सारा मैच कर रहे हैं, है ना, इब्राहिम को, इसहाक को और याकूब को, क्योंकि इसमें से खुदा यीशु मसीह पैदा हुए, और वही खूबियां या वो खुसूसियात जो थी वो याकूब में या इब्राहिम में, इसहाक में थी। और अम, यानी कुएं के इर्द गिर्द ही सब कुछ हो रहा है, जैसे अब है, जो भी कुछ होता है क्या है, खुदावन यीशु मसीह हमारा सेंटर है। हाँ, खुदावन यीशु मसीह के वसीला से सब कुछ हो रहा है, रूहें बच रही हैं, या जैसे कह लेंगे शादी का जो हम पढ़ रहे हैं, यानी रिबका की हुई, और क्या कहते हैं अब, राखल की और लिया की, है ना, और इब्राहिम की, इसहाक की। तो उसमें जो शामिल है कौन है, खुदावंद, खुदावंद यीशु मसीह। और जब चुने जाते हैं तो कौन चुन रहा है, खुदावंद यीशु मसीह हमें चुन रहा है, या हम उसके वसीला से बचाए जा रहे हैं। जिस तरह इसको दुल्हन के तौर पे चुना गया है, रिबका को चुना गया था, इब्राहिम को चुना गया था, और राखल को या लिया को चुना गया है ना। यानी अलग किया है, मखसूस एक किस्म का कर दिया कि ये मेरी बीवी है, या ये मैंने इसे चुना है। खुदावन जिस तरह हमें चुनता है, अलग करता है। तो इसलिए ये वाली जो बात थी कि यकूब कहाँ पे जाके ठहरा, कुएं के पास, और वहां पे उसको राखल जो थी वो मिली, और राखल से वो मिला, और गले लग के जो था वो रोया, उसने उसको चूमा उसको, क्योंकि वो क्या थी, उसकी फैमिली थी, और उसको उसमें जैसे कह लें तसल्ली मिली, क्योंकि वो अपने माँ बाप से जुदा होके कह लें आया था। तो उसको जब अपनी जैसे जब कहीं ऐसे दूर हमें कहीं परदेश में कोई अपना मिल जाता है, तो हम कितना खुशी से या तसल्ली हमारे अंदर आ जाती है। तो इसी तरह याकूब को एक तसल्ली जो थी, कह ले रूहानी तौर पे भी, और कह ले जिस्मानी तौर पे भी उसको मिली। और जिस तरह हम जब मसीह में आ जाते हैं तो हमें एक अजीब सी एक सुकून, एक तसल्ली, इत्मीनान जो है वो मिल जाता है। जैसे शायद मैंने एक दफा गवाही शेयर की थी कि जब मैं यहाँ पे जब इस चर्च में जाती हूँ, तो मैं जब एंटर ही हुई यानी उस चर्च के अंदर,
तो मुझे ऐसे जैसे चारों तरफ से खुदा पाक रूह ने घेर लिया, और मेरे अंदर एक पीस जो था ऐसे आ गया। और जब मैंने पहली दफा उस चर्च में गवाही दी, तो मैंने बताया कि मुझे ऐसे फील हुआ कि जैसे मैं अपनी फैमिली में आ गई हूँ, जैसे मेरे अपने माँ बाप हैं, मेरे बहन भाई हैं। तो ये जब हम मसीह में आते हैं, तो हमारे अंदर ये फीलिंग जो है, या एक खुशी, एक शादमानी, एक तसल्ली, इत्मीनान जो है, वो आ जाता है कि ये मेरी फैमिली है ना। तो ये यहाँ पे जो अम, उसने कहा कि तू मेरी, उसने क्या बोलते हैं, हड्डियों में से हड्डी है ना। लाबन ने कहा है ना। तो ये अगर देखें तो ये इसराइली कौम जो वैसे तो हमें पता है कि ये मियाँ बीवी के लिए कहा है ना। पैदाइश की किताब उसका 2 बाब और उसकी 23 आयत में, कि आदम अ, के लिए आदम ने कहा कि ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है ना। हवा के लिए कहा था। लेकिन ये हम इसराइली कौम में देखते हैं, एक हवाला हम पढ़ते हैं कि जिसमें ये कहा जाता था, यानी भाई भाइयों के लिए या रिश्तेदारों के लिए ये कहा जाता था कि ये तो मेरी हड्डी में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है ना। दूसरा सैमुअल 5 बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है। पढ़ू। जी हाँ जी, पढ़ो। ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਬਨ ਅਜ਼ਰ ਤੋਂ ਅਸ਼ਤੋਦ ਤੋੜੀ ਅਪੜਾ ਦਿੱਤਾ। सॉरी, पहला सैमुअल 19 नहीं है, दूसरा सैमुअल। हाँ जी, दूसरा वो सैमुअल पढ़ो 5 बाब। दूसरा से। ओके। 19 5 बाब। चैप्टर च लिखा, 19 मैं पढ़िया ना, 19 च भी लिखा। ओके ओके, हाँ जी, पढ़ो। ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੋਤ ਅਬਰੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਊਦ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਹੱਡੀ ਤੇ ਬੋਟੀ ਹਾਂ। ਤੇ 19 ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਂਸ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ हम्म। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਮਾਸਾ हाँ ਨੂੰ जी। ਆਖੋ, ਭਲਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਂਸ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਜੇਕਰ हम्म। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯੋਆਬ ਦੇ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਸਦਾ ਲਈ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨਾ ਬਣਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰੇ, ਸਗੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਕ। ਆਮੀਨ। हाँ जी, तो भाई भाई जो थे ना, उनके लिए भी ये कहा जाता था। इसी का दूसरा सैमुअल उसका 5 बाब और उसकी पहली आयत में भी यही लिखा हुआ है कि भाइयों के लिए वो हाँ जी, पढ़ना। ਜੀ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੋਤ ਅਬਰੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਊਦ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਬੋਟੀ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। हाँ जी। हाँ, तो ये इसलिए ये जो भाई भाई थे, यानी कबीले, ये जो 12 कबीले या 12 बेटे जो थे याकूब के, वो आपस में जो है वो क्या कहते थे कि तू हम तेरी हड्डी और तेरा गोश्त है। तो ये जो भाई भाई थे, यानी रिश्तेदार कह लें, तो उनके लिए ये वो आपस में वो कहते थे कि हम तो हड्डी में हड्डी, तेरी हड्डी में से हड्डी और तेरे गोश्त में से गोश्त है, यानी हम एक ही हैं, है ना। और हम रिश्तेदार हैं। तो यही बात जो है, कह लें कि हम जब मसीह में आते हैं, तो हमें इफिसियों 5 बाब उसकी 3 आयत पढ़ना, कि हम क्या हैं, एक बदन है मसीह में। अब क्या है, एक बदन है। हम सारे मसीही बहन भाई क्या हैं, एक बदन है। एक बता। जैसे कली, हाँ जी, आदम और हवा जी। एक बदन थे। हाँ जी। ਥਰਡ ਵਰਸ ਹੈ ਨਾ ਬਾਜੀ। हम्म। ਪਰ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹਰ ਭਾਂਤ ਦੇ ਗੰਦਮੰਦ ਅਥਵਾ ਲੋਭ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾਉ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਆ? उर्दू में लिखा हुआ है, इसलिए कि हम उसके बदन का अज़ू हैं, यानी एक बदन है या एक हिस्सा है खुदा यीशु मसीह के। और हम यानी अ,
खुदाम यसु मसीह की हड्डी में से हड्डी और गोश्त में से गोश्त है, यानी एक बदन है। सारी कलीसिया क्या है? एक बदन है ना। यानी गोश्त और हड्डी हैं खुदाम यसु मसीह की, और हम एक बदन हैं। जिस तरह के याकूब ने जब लाबन से और उसकी फैमिली से मिला, या आगे याकूब की जो औलाद थी, है ना, 12 कबीले, वो जब आपस में ऐसी कोई बात होती थी तो वो क्या कहते थे कि हम तेरी हड्डी में से हड्डी और तेरे गोश्त में से गोश्त हैं, यानी एक फैमिली है, एक खानदान है ना। तो इसलिए यहाँ पे भी जब लाबन के पास ਬਾਜੀ याकूब 30 गया। वर्स, सॉरी ओके ओके 30 वर्ਸ शायद। 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ हाँ ਅਸੀਂ जी, ਉਹਦੀ ਦੇਹੀ ਦੇ ਅੰਗ ਹਾਂ। हाँ जी, जिस्म है, एक बदन है ना। 30 वर्स सॉरी, जी मैंने जी। आए तो ये गलत लिख दी। सॉरी। हाँ जी। तो यहाँ पे जो लाबन है उसने भी याकूब से जब मिला तो उसने ये जो बात है इसलिए कही कि वो एक फैमिली है, एक खानदान है, इब्राहिम की औलाद में से या इब्राहिम के फैमिली में से, खानदान में से ये सारे मिले हुए हैं, है ना। एक बदन है, एक जिस्म है। इसी तरह जब हम मसीह में आ जाते हैं तो हम क्या हैं? एक बदन हैं। और इसी तरह जैसे कह लें कि हम क्या हैं? खुदा यीशु मसीह की दुल्हन है, जिसा आदम और हवा को कहा गया था, है ना। तो इसलिए ये यहाँ पे बात जो है हमें मिल रही है। और उसने अ, जो याकूब है वो रिबका, ओ सॉरी, लिया के घर जो है, या लाबन के घर, अपने मामू के घर पे, वहां पे वो रहना शुरू हो गया, है ना। और उसने अपना सारा जो है वो बताया, और वहीं पे वो रहा। और उसने कहा कि तू यहाँ पे ऐसे ही मेरी खिदमत जो है वो ना कर, बल्कि क्या कर, इसकी कीमत जो है वो ठहरा ले, जो उजरत है वो ठहरा रहे, है ना। और लाबन और जो क्या कहते हैं यकूब के दरमियान ये एक, जैसे कह लें, अहद हुआ, या उन्होंने आपस में ये फैसला किया, और कि मैं तेरी फ्री में नहीं करूँगा। लाबन ने कहा कि मैं तुझे इसका अजर जो है वो दूंगा। और वो वहां पे उसकी भेड़ बकरियां जो थी वो चराना शुरू हो गया, है ना। और लिया के बारे में, राखल के बारे में लिखा है कि वो बड़ी खूबसूरत थी, है ना। राखल जो थी वो खूबसूरत थी, और लिया जो थी वो उसकी आंखें जो थी चुंदी थी। और जो लेकिन राखल जो थी वो खूबसूरत थी, और याकूब को जो थी वो राखल जो थी वो पसंद थी। और उसने कहा कि मैं तेरी खिदमत जो है वो करूँगा, लेकिन उसकी हम्म, जो उजरत होगी, या वो जो उसका होगा, वो तेरी बेटी जो राखल है, तो वो मेरे साथ ब्याह दे, है ना। तो उसने छोटी को जो था वो पसंद किया, राखल को याकूब ने पसंद किया। और उसने कहा कि 7 साल उसकी जो है वो खिदमत जो है वो करेगा, याकूब की, याकूब लाबन की भेड़ें जो हैं वो चराएगा। और होजाया की किताब, वहां पे लिखा हुआ है इसके बारे में कि जो इसराइल है, यानी याकूब का आगे नाम जब बदल दिया था, तो वहां पे लिखा हुआ है होजाया 12 बाब और उसकी 12 आयत में कि इसराइल ने अपनी बीवी की खातर नौकर बना, और चुपाने की, यानी चरवाहा बना। होजाया 12 बाब और उसकी 12 आयत में लिखा जी है। हम्म। पढ़ो। हाँ जी। ਯਕੂਬ ਆਰਾਮ ਦੇ ਰੜ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਤੀਵੀਂ ਲਈ ਟਹਿਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤੀਵੀਂ ਲਈ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ। ਯਹੋਵਾ ਨਬੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਮਿਸਰੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ ਅਤੇ ਨਬੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਾਂਭੇ ਗਏ। हाँ जी। ਅਫਰਾਈਮ ਜੀ, ਇੱਕ हाँ ਔਰ जी। ਹੈ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ,
3 ਦੀ ਦੂਸਰੀ अच्छा, ਵਰਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। पढ़ो। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਤੀਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਸੇਂਗੀ, ਤੂੰ ਨਾ ਜਨਾਹ ਕਰੇਗੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਧੀਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਾਂਗਾ। ਆਮੀਨ। हाँ जी। अ, उस ओ नहीं, सॉरी, एक और हवाला है। 12 बाब, नहीं, होशाया 3 बाब, उसकी 2 आयत, जिसमें उसने कीमत जो थी वो ठहराई थी। सॉरी, ਜੀ, वो भी ਉਹ ਮੈਂ ठीक है, ਗਲਤ हाँ, वो ਪੜ੍ਹਤਾ। भी पढ़ना। ਹਾਂ, ਸੋ ਮੈਂ हम्म, ਉਹਨੂੰ 15 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜੌਂ ਦਾ 1.5 ਹੋਮਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੁੱਲ ਲਿਆ। ਆਮੀਨ। हाँ जी। तो उसने उसकी कीमत जो थी, वो बीवी जो उसकी थी, जो उसने खुदावंद ने जब उसको होशाया को कहा कि वो जो अ, बदकार थी औरत है ना, और उसकी कीमत जो थी उसने अ, अदा की और उसको ले आया, है ना, उसको रखा। तो और होशाया 12 बाब और उसकी 12 आयत में लिखा है कि उसने उसकी खातर चौपानी की और नौकर बना, है ना। 12 बाब, हाँ, इसराइल बीवी की खातर नौकर बना, उसने बीवी की खातर चौपानी की, और ये उसकी कीमत थी। ਚਪਾਨੀ, ਚਪਾਨੀ ਮਤਲਬ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ चरवाहा, ਨਾ। हाँ हाँ, ਹਾਂਜੀ, ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ चरवाहा, ਕੀਤੀ। भेड़ां दी राखी की थी, है ना। तो इसराइल जो था, यानी याकूब जो था, उसने अपनी बीवी की खातर, उसको पाने की खातर उसने कीमत अदा की, है ना। उसने उसको फ्री में नहीं मिली थी, बीवी जो थी उसको फ्री में नहीं मिली थी। उसने उसकी खातर 7 साल तक लाबन की जो भेड़ें थी वो चुराई थी, और उसका नौकर बना था, उसकी खिदमत की थी, उसकी भेड़ बकरियों को चराया था। तो ये कीमत अदा की थी, फ्री में नहीं उसको मिल गई थी, है ना। तो ये जो इसराइली कौम है, उसमें ऐसे जो है कीमत जो थी, यानी बीवी के लिए अदा की जाती थी, या कुछ जो जैसे दूसरा सैमुअल 3 बाब उसकी 14 आयत में लिखा है कि जब दाऊद था, उसने अपनी बीवी जो थी, जो साउल की बेटी थी, है ना, उसको जब उसको पाने के लिए फलस्तियों की 100 खलड़ियां जो थी वो दी थी, तब उसको ब्याह था। यानी साउल ने ये कहा था कि अगर तू फलस्तियों को मारे और उसकी जो स्किन या खलड़ियां जो थी वो दे, तो मैं अपनी बेटी जो है वो तुझे ब्याह दूंगा। तो इसलिए दाऊद ने भी कीमत अदा की थी अपनी बीवी को पाने के लिए, उसको लाने के लिए, उसको एक हिसाब से कह लें खरीदा था, मोल लिया था, है ना। और जो याकूब है, उसने 14 साल, यानी राखल के लिए 7 साल, 7 साल उसने लिया के लिए, और 6 साल ये पैदाइश 31 बाब उसकी 41 आयत में लिखा है ना, कि याकूब ने 20 साल एक हिसाब से उसकी लाबन की जो है वो खिदमत की थी, दोनों बीवियों की खातर, उनकी भेड़ बकरियों की खातर खिदमत की थी। नौकर बना था, चरवाहा बना था, और अपनी बीवियों को मोल लिया था, है ना। पैदाइश 31 बाब उसकी 41 चैप्टर पढ़ना, अंजना। ओके। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹਾਂ। तो इसलिए जो यकूब था उसने भी कीमत अदा की, और ये और भी एक दो जगह हवाला है कि उन्होंने ये कीमत जो थी, या जहेज या था, या मेहर जो थी, वो अदा की, फिर बीवियां जो हैं थी उन्होंने पाई। जी, पढ़ना। ਇਹ 20 ਵਰੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ 14 ਵਰੇ ਤੇਰੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਧੀਆਂ ਲਈ ਤੇਰੀ ਟਹਿਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ 6 ਸਾਲ ਤੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਲਈ। ਤੂੰ 10 ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਤਲਬ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ। हम्म। ਆਮੀਨ। तो यकूब ने भी जब अपनी बीवियों के लिए ये कीमत अदा की, तो एक जैसे कह लें रवाज था या रवायत थी वहां पे, कि बीवी जो थी वो फ्री में नहीं, उसको मोल लेते थे या उसकी कीमत अदा करते थे।
है ना। तो इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह ने भी हमें मोल ले लिया, हमारी कीमत अदा की है। बेशकीमती खून जो है हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमारा जो है अदा किया है ना, और हमें खरीद लिया है। हालेलुया। इसलिए याकूब ने जब ये किया तो ये सब कुछ हम अपने खुदावंद यीशु मसीह में देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने भी हमें मोल ले लिया, हमें खरीद लिया, हमारी कीमत अदा की, बेशकीमती खून दे के मुझे और आपको खरीदा है। इसलिए ये फ्री में नहीं है, या हमें कीमत दे के मोल ले लिया है हमारे खुदाम यीशु मसीह ने। और ये सारा जो कुछ भी खुदाम यीशु मसीह ने किया और जो कुछ आगे होने वाला है, यानी जैसे जो रैप्चर का और जो 1000 साल बादशाही का, या ये सारा, ये एक पैटर्न या एक तरीका हमें नजर आता है कि जैसे इजरायली करते थे, खुदावंद यीशु मसीह उसी तरीके से सब कुछ जो था वो कर रहे थे। और यानी कीमत अदा की, और उसने वो सफरिंग में से वो नौकर बना, या वो खादम की सूरत में यहाँ पे उस वक्त जमीन पे आए थे, है ना। तो खुदा यीशु मसीह ने वो सारा जो एक रवायत या एक तौर तरीके जो थे इसराइलियों के, उसके मुताबिक सब कुछ किया और मुझे और आपको चुना। यानी खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को चुना, जिस तरह राहुल को चुना, याकूब ने जिस तरह अ, नौकर ने उसको चुना रिबका को, और खुदावन ने इब्राहिम को चुना, क्योंकि हमें पता है कि यानी अब दुल्हन के तौर पे कोई ये फर्क नहीं है ना कि मर्द है या औरत है। खुदावन यीशु मसीह में चाहे वो मर्द है, वो भी खुदावन यीशु मसीह की दुल्हन है। तो इसी तरह खुदावन ने तब जो था इब्राहिम को चुना, और सारा को और रिबका को और को खुदावन ने चुना। इसी तरह हम जो मसीही हैं, हमें भी खुदावन यीशु मसीह ने चुना है दुल्हन के तौर पे, और हमारी कीमत जो है उसने सलीब पे अदा कर दी है। जैसे इसराइली कौम जो थी वो बीवी के लिए कीमत अदा करती थी, है ना। और एक और यहाँ पे जो बात है कि देखें, उसके बारे में लिखा है आ, कि राखल जो थी बड़ी खूबसूरत थी, है ना। और जो लिया थी वो खूबसूरत नहीं थी, है ना। यानी शक्ल जो थी जिस्मानी तौर पे खूबसूरत नहीं थी, है ना। लेकिन खुदावंद ने अ, जो लिया थी उसको चुना, है ना। पलोठे को, या जैसे कह लें उसको चुना। और जब शादी की बारी आई, जब उस रात को, और यकूब की हुई शादी, तो कहते हैं कि उस वक्त रवाज था कि एक तो रात का टाइम होता था, ये आगे भी वो मुझे वर्ष नहीं मिली, जहाँ पे यहूदा का, शायद आपको याद हो, है ना, कि उसको पता ही नहीं थी चला कि उसने अपनी बहू के साथ किया, यहूदा जो अभी ये इसका बेटा होगा याकूब का, है ना। तो अ, कमरे में कह लें अंधेरा भी होता था, या टेंट कह लें, और उसने नकाब भी ओढ़ा, या घूंघट कह लें, है ना, ओढ़ा होता था दुल्हन ने। तो उसको पता ही नहीं चला, उसको सुबह पता चला याकूब को कि ये जो है लिया है, ये वो राखल नहीं है ना। तो इसलिए याकूब उसके साथ हम आगोश हुआ, और सुबह को उसको पता चला, है ना। और जिस तरह हम देखते हैं कि याकूब जो था, हमने पीछे सीखा कि इसका याकूब नाम का मतलब जो है वो धोखेबाज है। लिखा हुआ है ना, बाइबल में ही लिखा हुआ है, एक खुद से नहीं हमने निकाला। तो ये बाइबल में लिखा हुआ है कि वो धोखेबाज था, है ना। तो उसने धोखे से किया, आगे उसके साथ भी धोखा हुआ, और उसको राखल की जगह, जिससे वो मोहब्बत करता था, प्यार कर, जिसके लिए वो हर कीमत देने के लिए या सब काम करने के लिए तैयार हो गया, उसके साथ धोखा, और उसको लिया जो थी वो मिली, है ना। और लेकिन जब उसने कहा
तो लाबन से, तो लाबन ने कहा कि ये हमारा रिवाज नहीं है, ये हमारी रवायत नहीं है कि छोटी जो है वो पहले ब्याह दी जाए, है ना। तो इसलिए अगर उसके साथ करना है तो अब तुझे पहले इसके जो 7 दिन हैं वो पूरे कर, और फिर तुझे राखल भी ब्याह दी जाएगी। तो इसका मतलब है ये भी हमें जो 7 दिन का एक बीवी के साथ जैसे कह लें जो टाइम है, पीरियड वो गुजारने का, ये रवायत मिल रही है कि इसराइली कौम में ये होता था कि 7 दिन तक जो एक उसको कह ले शादी का, या उसको जो उसका शादी का फंक्शन कह लें, वो कहा जाता था, है ना। तो इसी तरह जब खुदा यीशु मसीह अपनी दुल्हन को अपने कह लें डेरे में कह लें या अपने खैमे में या जिसे लेके जाएगा, तो 7 दिन तक, यानी 7 वो साल जो जिसको कहा जाता है कि मुसीबतों का दौर यहाँ पे जमीन पे होगा, लेकिन आसमान पे खुदा यीशु मसीह की वो शादी का टाइम होगा, जब वो अपने बाप के पास लेके जाएगा या अपने घर लेके जाएगा, है ना। तो इसलिए ये जो कुछ यानी कहते हैं, है ना, तो हमें ये जो वहाँ का रवायत थी उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। और जो वो कहते हैं यहाँ पे अभी जिक्र नहीं है, लेकिन आगे वो क्या बोलते हैं कि जब दुल्हन को लेके जाता था तो उसको हवा में लहराया जाता था, उसको जैसे कहले गोद में उठा के। तो अभी भी ये रस्म उनकी होती है कि वो दुल्हन को दूल्हा जो है वो जैसे कहले हवा में उठाता है, यानी गोद में या कह लें उठाता है उसके। एक मैंने देखा था कि वो चेयर पे बैठी है और उसको आ, एक और उसको कहा गया कि हिलाने की कुर्बानी, है ना। ये हमने जब कुर्बानियों के बारे में सीखा था तो तब सीखा था। तो इसलिए जो रैप्चर है उसको हलाने की कुर्बानी जो है वो कहा गया है ना। क्योंकि क्या होगा, हवा में उड़कर जाना है दुल्हन ने, है ना। तो ये खुदाम यीशु मसीह बड़ी तरतीब से वो सारे रस्मों रिवाज जो इसराइल में थे वो सब जो है वो कर रहा है, यानी करेगा और कर रहा है अभी तक जो है। और ये जब आएगा खुदा यीशु मसीह लेने के लिए तो वो सारे आगे जो रस्म रिवाज हैं वो खुदा करेगा। तो 7 दिन तक याकूब अपनी जो बीवी थी लिया उसके साथ उसने टाइम गुजारा, और उसके बाद जो राखल थी उसको भी आ, लाबन ने ब्याह दिया, है ना। और वो उसके साथ भी रहा। और जो याकूब था वो राखल से प्यार करता था। उसने अपनी बीवी जो थी लिया, उसके साथ साफ लिखा है कि नफरत रखी, है ना। और खुदावंद को ये बात पसंद नहीं आई, इसीलिए उसने यहाँ पे लिखा है कि उसका रहम बंद कर दिया राखल का, और लिया का खोल दिया, है ना। क्योंकि खुदावंद को ये पसंद नहीं था कि जो याकूब है वो लिया से नफरत रखे। इसलिए खुदावंद ने रूहानी बरकतें जो हैं वो उसको देना शुरू कर दी। यानी अब अगर हम मतलब वो तो जिस्मानी फल जो थे कह लें औलाद जो थी, है ना, वो उससे पैदा होना शुरू हो गई। लेकिन राखल को जो कह लें एक जैसे कह लें उसका रहम बंद कर दिया, यानी रूहानी तौर पे एक मैं कहूँगी कि जो बरकतें हैं वो उसकी जिंदगी में नहीं आई। और लिया को खुदा बरकतें देना शुरू हो गया, और उसका रहम जो था वो खुल गया, है ना। और पैदाइश 20 बाब उसकी पहली आयत पढ़ना, जिसमें हम देखते हैं कि जो राखल थी, हाँ 30 बाब उसकी, जी हाँ पहली आयत पढ़ना, कि जो उसकी बहन थी राखल, जी। पढ़ना। ਜਦ ਰਾਖੇਲ ਨੇ ਡਿੱਠਾ ਕਿ ਯਾਕੂਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਤਾਂ ਰਾਖੇਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਖੁਣਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ। हाँ जी, ये खुन्नस पता नहीं रश्क लिखा हुआ है हमारे उर्दू में। अगर उर्दू में कोई पढ़ता है कोई भी सनिया सचनाइला या सरफीन सुरैया, सुरैया का नेट खराब हो रहा है, पहली आयत जो है वो पढ़ना, ये बड़ी ਬਾਜੀ ਉਹ खूबसूरत है। ਜਲਣ ਹੀ ਲੱਪੇ ਜਲਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ जलन, ਇੱਕ हाँ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਹਾਂ ਨਾ हाँ जी, ਜਲਣ। हाँ जी,
जेलसी करने लगी। तो देखें कि वो खूबसूरत है, उसमें वो सब कुछ है, और उसका शौहर उसको प्यार कर दे, फिर भी वो जेलसी कर रही है अपनी बहन के साथ कि उसके बच्चे जो हैं वो हो रहे हैं पैदा। तो ये अब जो हम रूहानी इसराइल हैं, है ना, हमारे अंदर रूहानी खूबियां होंगी या रूहानी जी सनिया, यहाँ पढ़ना पहला जी मैं पहली आयत, पैदाइश 30 बाब उसकी पहली आयत। तो इसलिए हम रूहानी तौर पे हमारे अंदर खूबसूरती है, जैसे उस दिन मैं बात कर रही थी। और जब पढ़ूं? और हाँ जब जी। राहत ने देखा कि यकूब से उसके औलाद नहीं होती, तो राहल को अपनी बहन पर रश्क आया, सो वो यकूब से कहने लगी कि मुझे भी औलाद दे, नहीं हाँ तो जी। मैं हाँ, मर जाऊंगी। हाँ जी, इतनी ज्यादा मैं कहूंगी एक जेलसी थी उसके अंदर, हसद था कि उसने कहा कि नहीं तो मैं मारी जाऊंगी, है ना। तो इसलिए हम जो रूहानी लोग हैं ना, इससे जो जिस्मानी लोग हैं वो हमारे साथ एक हिसाब से कह लें वो जेलस हैं, वो हसद करते हैं हमारे से। इसलिए हम जो रूहानी हैं, हम खुश रहें इसी में हमारे लिए देखें ये रूहानी बरकतें मिल रही हैं हमें, रूहानी फल, रूह के फल जो हैं। इसीलिए लोग जो जिस्मानी हैं वो जैसे कह लें वो पसंद नहीं करते हमें किसी भी तरीके से। हालांकि हमें तो खुदाउन की तरफ से बरकत मिल रही है, लेकिन जो जिस्मानी है वो अजीब तरीके से कह लें वो हमसे नफरत करते हैं, जेलसी करते हैं, और झूठे कह लें एक मैं कहूंगी कि एक हिसाब से कहेंगे कि नहीं ये तो शैतान की तरफ से है, जब हम रूहानी हमारी बरकतें जो हैं वो हमें मिल रही होती हैं, है ना। तो देखें खुदावंद ने लिया का इंसाफ किया, लिया ने खुद कुछ नहीं किया। हम आगे देखेंगे या इसी चैप्टर में भी आप देखें कि लिया ने अपने कुछ नहीं किया, ना उसने याकूब के साथ वो लड़ी है, ना राखल के साथ वो लड़ी है। बल्कि अगले चैप्टर में जाके हम देखेंगे कि जिसे हम जो राखल है उसकी फितरत का हमें पता चलेगा कि वो याकूब से उस तरह से मोहब्बत नहीं करती थी, लिया मोहब्बत करती थी अपने शौहर से। देखिए उसके यहाँ पे इस चैप्टर में चार ही हैं मेरा ख्याल, है ना, बेटे पैदा हुए। तो हर दफा वो क्या एक उम्मीद रख रही है कि मेरा हस्बैंड जो है वो मुझे प्यार करेगा मुझसे, अब वो मोहब्बत करेगा, अब ये हो गया है। तो उसे किसकी लगन लगी हुई है कि मेरा बंदा ही मैंने प्यार करे, मेरा बंदा मेरे जैसे यानी वो मोहब्बत करे, उसको उसकी जरूरत है, उसको चीजों की। आगे चल के हम देखेंगे कि जो राखल है उसने वो मुझे याद नहीं है कौन सी बूटी जैसी थी या कुछ चीज थी, वो उसकी खातिर लिया ने कहा कि लिया को मिली थी या शायद लिया के बेटे को। तो राखल ने कहा कि ये तू मुझे दे दे। तो लिया ने कहा आ, कि आज रात फिर जो याकूब है वो मेरे साथ सोएगा, है ना। तो राखल ने दे दिया, उसने अपने बंदे की परवाह नहीं की कि मैं एक किस्म का आप कह लें मैं अपने हस्बैंड को एक हिसाब से जैसे कह ले सौदा कर रहे हैं या बेच रही है, तो उसने दे दिया, है ना। लेकिन लिया देखें उसको किसी और चीज की वो कीमती थी, वो मुझे अब याद नहीं आ रहा, है ना, आगे चल के पढ़ेंगे। लेकिन लिया ने उस कीमती चीज को नाचीज जाना अपनी हस्बैंड की मोहब्बत के लिए। इसलिए खुदावन ने लिया को बरकत दी, लिया के रहम को खोला। और जिस तरह हम कहेंगे कि जो खुदावन यीशु मसीह के जो हमारा दूल्हा है इस तरह की मोहब्बत करते हैं। और लिया राखल का अगर आपको याद हो तो आगे चल के पढ़ेंगे कि वो बुत भी चुरा के ले आई थी अपने बाप का, यानी वो बुत परस्त भी थी। और एक हिसाब से कह लें कि उसने अपने हस्बैंड को भी दे दिया, यकूब जो इससे इतनी मोहब्बत करता था। लेकिन उसने उसकी मोहब्बत को मैं कहूंगी कि नाचीज जाना कि अभी तक उसमें उसके अंदर वो तब्दीली नहीं आई थी, वो बुत परस्ती भी करती थी।
اور उसकी मोहब्बत को भी उसने वो वाली एक अहमियत जो है वो नहीं दी थी, है ना। लेकिन लिया जो है सिर्फ उसको क्या चाहिए था, उसको यकूब चाहिए था। इसलिए लिया जो है खुदा ने उसको बरकत दी। और मैं कहूंगी कि उन पाक औरतों में यानी रिबका के जैसे जो खूबियां थी, या सारा में जो ये खूबियां थी, और अब लिया भी उनकी तरह वो पाक, वो मुकद्दस औरतों में शामिल हुई। और आगे चल के हम देखेंगे कि वो उन अपने फैमिली में या अपने खानदान में, या जहाँ सारे उसकी फैमिली दफनाई गई थी, वहां पे वो हुई लिया और याकूब कह लें। लेकिन जो राखल थी वो रास्ते में ही, उसकी मह कब्र फलस्तीन में है शायद, है ना। तो आगे चल के हम बढ़ेंगे, है ना। तो उसकी वहां थी, वो अपनी खानदान में शामिल नहीं हो सकी, इसलिए लिया को खुदा ने बरकत दी। इसलिए जो मैं कहूंगी कि लोटी कह लें या एक पहली बीवी, खुदावंद ने उसको वो अव्वल दर्जा दिया है। जैसे हमने हाजरा के बारे में भी सीखा था कि वो सॉरी क्या बोलते हैं, सारा और हाजरा। तो खुदावंद ने सारा को बरकत दी, और खुदावंद ने इब्राहिम से कहा कि जो सारा कहती है वो ठीक है, तो लौंडी को यहाँ से निकाल दे, है ना। यही तरीका या यही पैटर्न, बेशक याकूब राखल से मोहब्बत करता था, लेकिन जो लिया थी उसकी पहली बीवी थी, या असल बीवी कह ले वही थी। तो इसलिए खुदावंद ने उसको बरकत दी। तो खुदावंद बड़े कह लें कि तरतीब से हम सब जो हम मसीही भी कह लें, है ना, और अपने बंदों को वो सिखा रहा था कि नहीं, एक मर्द के लिए एक ही औरत खुदावन ने बनाई है, और वो जो बीवी है, जो आप पहली बीवी कह लें, खुदावन ने उसको दर्जा दिया, उसको बरकत दी है। और इस चैप्टर में भी हम देखते हैं कि और लिया उससे मोहब्बत करती थी। सारा के बारे में लिखा है कि वो इब्राहिम से मोहब्बत करती थी, रिबका जो थी अपने शौहर से इसहाक से मोहब्बत करती थी। इसलिए ये एक बीवी के बारे में, हम जो बीवियां हैं यानी खुदाम यीशु मसीह की, ये मर्द भी इसमें शामिल है तो उनकी मोहब्बत इस तरह की होनी चाहिए जैसे लिया कर रही है। उसको दुनिया की चीजों से, दुनिया के कामों से उसको वो ही नहीं, जिन्ने बच्चे होंगे जा रहे हैं ना, वो यही आस लगा रही है, वो यही उम्मीद कर रही है, हाय मेरा बंदा मैनू प्यार करे, मुझे वो उस तरह से अहमियत दे, है ना, उस तरह से करे। और लिया का किरदार या लिया का जो रवैया है वो हमें नजर आ रहा है कि ये मेरे और आपके अंदर होना चाहिए। ये जिस्मानी बात हो रही है, लेकिन रूहानी तौर पे भी और जिस्मानी तौर पे भी हमें अपने हस्बैंड के साथ इस तरह की मोहब्बत जो है होनी चाहिए। वो देखें, वो दूसरी औरत से मोहब्बत कर रहा है, लेकिन लिया फिर भी उससे मोहब्बत कर रही है ना। तो ये मेरे और आपके अंदर होना चाहिए। मुझे पता है ये बड़ा मुश्किल है ना, कि फिर भी मोहब्बत करना, कि वो बंदा तो प्यार नहीं करता पिया, वो तो एक हिसाब से कह लें बेइज्जती कर रहा है, ये जो भी है उसका रवैया ना, वो उसके साथ रह भी नहीं रहा, वो तो रह भी उसके साथ रहा था, राहुल के साथ, है ना। लेकिन फिर भी लिया जो थी वो अपने हस्बैंड से मोहब्बत जो है वो कर रही थी। और हमें इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने लूका 14 बाब और उसकी 24 आयत में ये लिखा है कि अपने जो अ, बीवी बच्चों से, माँ बाप से, बहन भाइयों से अपनी जान से भी ज्यादा अजीज, अपनी जान से भी दुश्मनी ना करे, वो मेरा शागिर्द होने के लायक नहीं है। यानी हम खुदा यीशु मसीह के लायक ही नहीं है अगर हम सबसे ज्यादा उसको मोहब्बत नहीं करते। यानी लिया ने जैसे किया, उसको अपनी परवाह नहीं थी, मेरी बेइज्जती हो रही है, मेरा बंदा मैनू लिफ्ट नहीं करा रहा, मुझे टाइम नहीं देता, मेरे पास रहता नहीं है, मेरे बच्चे हैं, बच्चों से भी पता नहीं कैसा उसका रवैया था याकूब का, है ना। क्योंकि हमने देखा कि वो यूसुफ से मोहब्बत करता था, लेकिन लिया फिर भी अपने हस्बैंड से, अपने शौहर से मोहब्बत रखती है ना। तो इसी तरह खुदा यीशु मसीह ने भी कहा कि जो सबसे ज्यादा यानी अपनी जान से भी, जिस तरह लिया ने किया, उसने अपनी परवाह नहीं की, मेरे ना की हुंदा पे सही सलूक हो रहा है नहीं हो रहा, उसने फिर भी याकूब से मोहब्बत की।
है ना। तो ये बात मुझे बड़ी ही खूबसूरत लगी। ये बड़ी मुश्किल है, मैं अपना भी कहूँ अगर तो, लेकिन फिर भी हमें अपने हस्बैंड के साथ फिर भी उसकी जैसे कह लें उससे मोहब्बत रखनी है। तो देखे जो वो जिस्मानी थी वो उससे जेलसी करती थी, उससे हसद रखती थी, क्योंकि खुदावंद उसको बरकत दे रहा था। इसलिए मैं भी और आप भी अगर खुदावंद यीशु मसीह से इस तरह की मोहब्बत रखेंगे, तो ये जो जिस्मानी इर्द गिर्द हमारे लोग हैं वो हमसे हसद करेंगे, लेकिन खुदा हमसे मोहब्बत करेगा, और खुदावंद वो रूहानी बरकतें जो हैं वो उससे हमें बढ़ता जाएगा। हालेलुया। इसलिए खुदावंद आप सबको भी और मुझे भी ये जो मसा है मेरे और आपके ऊपर ठहरे, और ये आगे चल के हम सीखेंगे कि ये जो बेटे थे यानी रोबन, शमौन और लावी और यहूदा, देखें खुदावन ने लावियों को और यहूदा को चुना। लावी और यहूदा में से खुदावन यीशु मसीह यानी लावियों की तरह खादम बन के आया, और यहूदा में से खुदावन यीशु मसीह जैसे जो बादशाही है, जो खुदा याकूब ने इसको बरकत दी थी अपने यहूदा जो बेटा था। तो खुदावन ने देखे जो एक जो बरकतें थी वो भी लावी को दी, तो जो लिया से पैदा हुआ था, और यहूदा को, जिससे कहा कि इससे बादशाही जो है वो कभी खत्म नहीं होगी, यानी खुदावन यीशु मसीह इसमें से आए। तो इसलिए खुदावन ने लिया को बरकत दी और राखल को नहीं बरकत दी, है ना। राहुल के आगे हम देखेंगे, लेकिन उसका जो रवैया था, क्योंकि उसके अंदर से वो पुरानी इंसानियत जो थी, फितरत जो थी, उसकी तब्दील नहीं हुई थी। इसलिए ये जरूर हमारे अंदर से वो जो पुरानी इंसानियत है, वो जो वो बुत परस्ती या वो दुनिया की फिक्रें, दुनिया के साथ जो हमारी मोहब्बत है, जिस तरह देखें वो जो लूत की बीवी थी, असल में आज हमारा टाइम तो हो गया है, कि हम अगर देखें तो उसको दुनिया से मोहब्बत थी, उसकी वजह से कह लें, क्योंकि एक माँ या एक बीवी अपने फैमिली को या अपने उसको जोड़ के रखती है। जैसे रिबका का हम देख रहे हैं, जैसे लिया का देख रहे हैं, जैसे सारा का देखा कि उस, ठीक है खुदा बातचीत जो वादे तो वो कर रहा था इब्राहिम के साथ, याकूब के साथ, इसहाक के साथ, लेकिन सारा, रिबका और लिया क्या कर रही थी, वो अपनी फैमिली को जोड़ के रखती थी, वो अपने हस्बैंड के साथ जुड़ी थी। उनकी वजह से वो बरकतें जो हैं, या वो उनके बच्चे, या वो घर जो था वो चल रहा था, या फर्मा बरदारी में वो चल रहे थे। तो ये बीवियां जो हैं, ये माएँ जो हैं, घर को जोड़ के रखती हैं, संभाल के रखती हैं, खुदावंद में वो रखती हैं। तो इसलिए खुदावंद ये वाला मसा हमारे सबके ऊपर भी उंडेले, कि हम जो बीवियां हैं, जो माएँ हैं, अपनी अपनी फैमिली को, यानी जो रूहानी हमारी फैमिली है यानी मसीह में भी, और जो जिस्मानी हमारी फैमिली है उसमें भी अपने अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को जोड़ के रखें। तो इसलिए हमारा जो किरदार है लिया की तरह होना चाहिए, सारा की तरह, रिबका की तरह, जिसने फिक्र की। रिबका का हमने देखा कि उसके हस्बैंड ने बरकत जो है, जो खुदा ने वादा किया था कि मैं याकूब को दूंगा, जब वो 100 को देने लगा, तो रिबका ने सारी उस हालात को संभाल लिया, खुदावन की हिकमत से किया। लेकिन उसने हालात को, घर के सारे निजाम को, या रूहानी वो सारे निजाम को, एक किस्म का कह ले खुदावन की मदद से, खुदावन के या पाकरों की मदद से उसको संभाला, तो खुदावन ने उसको बरकत दी। हालेलुया। इसलिए मैं और आप अगर खुदावन में चलेंगी, तो खुदावन हमारे घरों को बरकतों से माला माल कर देगा, और हमें वो रूहानी और जिस्मानी नेमतों से भर देगा। इसलिए खुदावंद आप सबको भी और मुझे भी बरकत दे, और ये मसा हमारे ऊपर डेले के हम काश के इस तरह से अपने यीशु से मोहब्बत कर सकें, जिस तरह लिया ने याकूब से मोहब्बत की। और
اس طرح سے ہم خداوند کے ساتھ وفاداری سے ایمانداری سے چلتے رہیں. God bless you.